ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जून ही नहीं थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा दिया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करने तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं। चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो, आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं। और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है। यहाँ पिछले 19 दिन से तो है बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SIR ਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 2,500 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 5,16,000 ਵੋਟਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ 66,000 ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 4,50,000 ਵੋਟਰ ਬਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ 66,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3,80,795 इलेक्टर्स की लिंकेज की जा चुकी है पुरानी SIR से।
या उनकी सेल्फ मैपिंग हो या प्रोजेनी के थ्रू मैपिंग हो, ये उनकी लिंकेज की जा चुकी है। रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं 69,451 इलेक्टर्स जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र जमा तो कराए हैं लेकिन उनकी मैपिंग नहीं है, मैपिंग के बिना उन्होंने जमा कराए हैं, जिनको हम अभी नोटिस पीरियड में उनसे और अधिक जानकारी, जो कि ईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और ये अब अगली कार्रवाई हमारी शुरू की जाएगी। पर इसके अलावा जो अनकलेक्टेड हमारे जो फॉर्म्स रह गए वो 66,146 यानी 12.8181% जो फॉर्म्स है, 81% फॉर्म्स जो हैं वो हमारे अनकलेक्टेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं। जब हम अनकलेक्टेड एन्यूमरेशन फॉर्म्स का अगर वर्गीकरण देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमारे 43,724 यानी 66% जो उसमें मतदाता हैं वो शिफ्टेड हैं, परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी के हैं। 12,000 के करीब मतदाता, 12,500 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो एब्सेंट पाए गए, 3 बार विजिट के बाद भी वो एब्सेंट वहाँ पे पाए गए। 3,500 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो मृतक कैटेगरी में हैं और अदर की कैटेगरी में हमारे पास लगभग 3,700 मतदाता हैं जिन्होंने फॉर्म अपने जमा नहीं कराए, नॉन कोऑपरेशन कह लीजिए, जिन्होंने फॉर्म अपने जमा नहीं कराए, और डुप्लीकेट कैटेगरी में 2,590 के करीब मतदाता हैं। तो ये कुल आंकड़ा जो है, जो मैंने फिगर्स बताई, वो 66,146 का आंकड़ा है जो कि अनकलेक्टेड फॉर्म्स है। जैसा मैंने बताया 87% फॉर्म कलेक्ट हो गए, जो 12.81% नहीं कलेक्ट हुए वो 66,000 के करीब ये फॉर्म्स हैं।